السلام علیکم جی. خدیجہ محمود شاہد. آج 2 اکتوبر ہے. آج میرے بھائی عمر شریف کو ہم سے جدا ہوئے پورا 1 سال ہو گیا ہے. بھائی جو ہر بہن کا مان ہوتا ہے، اس کا غرور ہوتا ہے، اس کا فخر ہوتا ہے. میرا بھائی بھی میرا مان ہے، میرا غرور ہے، میرا فخر ہے. میں تھا اس لیے نہیں کہوں گی کہ جو دلوں میں رہتے ہیں وہ تھا اور تھے کب ہوتے ہیں. وہ تو ہمیشہ ہمارے ساتھ ہوتے ہیں. ہاں، بس یہ ہے کہ ہماری دنیاوی آنکھیں انہیں دیکھ نہیں سکتی اور ہمارے کان ان کی آواز کو ترستے ہیں. عمر بھائی، جاتے ہوئے کہتے ہو قیامت کو ملیں گے، کیا خوب قیامت کا ہے گویا کوئی دن اور. عمر بھائی، جب پچھلے سال آپ ہمیں ہمیشہ کے لیے چھوڑ کے جا رہے تھے تو اس وقت میرے دل سے ایک کراہ ضرور نکلی تھی. نگر ہو جائے گا ویران سارا، اسے روکو وہ ہجرت کر رہا ہے. آپ نے ساری عمر جو ہے لوگوں میں مسکراہٹیں بانٹی ہیں، پیار بانٹا ہے، قہقہے بانٹے ہیں. لوگوں کو ہنسانے والا 2 اکتوبر کو سب کو رلا کے چل دیا ابدی زندگی کی طرف. یہ حقیقت ہے کہ ہم سب نے ایک دن جانا ہے، لیکن کچھ ایسے پیارے لوگ ہوتے ہیں نا کہ جن کا جانا جو ہے وہ ہمارے تصور میں بھی نہیں ہوتا اور دل تسلیم بھی نہیں کرتا. آج کے دن کے حوالے سے میں تو خود کچھ بھی نہیں کہوں گی، لیکن کچھ ایسے بڑے لوگوں کے پیغامات ضرور شیئر کروں گی. چڑھدے پنجاب کی فلم انڈسٹری کا ایک بہت بڑا نام گرپریت گھگی، جو ایک لمبے عرصے سے لوگوں کے چہروں پہ مسکراہٹیں بکھیر رہے ہیں، جو عمر بھائی سے بہت پیار کرتے ہیں. آج کے دن کے حوالے سے عمر بھائی کے لیے انہوں نے پیغام دیا ہے. ست شری اکال، السلام علیکم. بچپن سے ایک لائن سنتے آئے ہیں کہ یہ زمیں کھا گئی آسماں کیسے کیسے، اور واقعی بڑے بڑے آسمان جتنے نام کب زمین دوز ہو گئے پتہ ہی نہیں چلا. کہاں چلے گئے وہ بڑے لوگ، کہاں سے ڈھونڈ کے لائیں ان کو کچھ پتہ نہیں. انہی میں سے ایک آسمان جتنا نام ہے عمر شریف صاحب کا. مزاح کے بادشاہ، کامیڈی کو نیا ایام دینے والے ہمارے وہ بھائی. آج عرصہ ہو گیا وہ ہم سے جدا ہو گئے، لیکن ابھی بھی لگتا ہے وہ اسی دنیا میں ہیں. کچھ نیا بنا رہے ہیں، کچھ نیا سوچ رہے ہیں ہم کو خوش کرنے کے لیے، ہمیں ہنسانے کے لیے. لیکن سچائی یہ ہے کہ وہ رخصت ہو گئے. 2 اکتوبر کو ان کی برسی منائی جا رہی ہے. ان کے چاہنے والوں کو، ان کے سارے فینس کو، ان کے پریوار کو، جہاں میں اپنا دل کا دکھ پرکٹ کرتا ہوں کہ ہم سب لوگ اتنا ہی افسوس آج تک محسوس کرتے ہیں ان کے چلے جانے کا جتنا شاید آپ لوگوں کے دلوں میں ہوگا. تو آؤ 2 اکتوبر کو ان کی برسی پہ ان کو یاد کریں. عمر شریف صاحب ویسے تو ہمیشہ ہی زندہ رہیں گے، کیونکہ موت کسی شخص کو مار سکتی ہے، کسی شخصیت کو نہیں. وہ شخصیت تھے، بہت بڑی شخصیت تھے، وہ ہمیشہ ہمارے بیچ زندہ رہیں گے. اور اب خالد عباس ڈار، ہمارے ملک کا ایک اتنا بڑا نام، استادوں کے بھی استاد، کہ جن کو ہر اداکار، ہر پرفارمر اپنا استاد مانتا ہے، جس نے بہت سارے نامی گرامی لوگ جو ہیں اس انڈسٹری میں انٹروڈیوس کرائے، جو عمر بھائی کو بیٹوں کی طرح پیار کرتے ہیں. آج کے دن کے لیے ان کا پیغام سنتے ہیں. ویورز، عمر شریف کو ہم سے بچھڑے ہوئے آج 1 برس ہو گیا. اللہ کا حکم ہے، یہ ماننا پڑتا ہے. جب تک دنیا قائم رہے گی وہ تو ہمارے ساتھ نہیں ہے، مگر اس کا کام جو ہے وہ رہتی دنیا تک ہر شخص سانس لیتا ہے جو دیکھتا رہے گا. کس قدر عمدہ اور کس قدر اعلیٰ آرٹسٹ تھا وہ. میرے تو خیر بچوں جیسا تھا. مجھے پہلی دفعہ 76 میں ملا، 1976. ہاں، میں کھیل کرنے گیا کراچی آدم جی سائنس کالج ہال میں. میرا کھیل تھا جو 15 دن چل رہا، میں پتلون اور نوکری. میں نے اس کھیل میں معین اختر کو انٹروڈیوس کیا ایز این آرٹسٹ. اس کا یہ
पहला स्टेज प्ले था, मलिक अनोखा को किया, और कराची के आर्टिस्ट जमशेद अंसारी था, और बाकी टीम जो थी वो थिएटर के आर्टिस्ट थे। तो एक बच्चा ही कहूँगा उसको, कम उम्र लड़का मेरे पास आया और मुझे कहने लगा कि डॉक्टर साहब मैं आपका ये खेल देखना चाहता हूँ, मैंने 5 रुपए की टिकट खरीदी है। मैं कहा बेटा आप क्या करते हो? कि मैं 1 डे करता हूँ कभी कभी, तो हमारे यहाँ, मैं कहा कराची में तो 1 डे ही होता है खेल, मगर हम 15 दिन करेंगे यहाँ पे। 15 रोज़ मैं पतलून और नौकरी आदमजी साइंस कॉलेज हॉल में किया। तो उमर रोज़ आते थे मेरे पास बैठते थे। वो माशाल्लाह इस कदर ऑब्जर्वर था अच्छा, और इस कदर ज़हीन था, उसने हमें देखा जैसे हम काम करते हैं। और उसके बाद फिर मुइन बड़ा अप्रिशिएट हुआ उस खेल में, क्योंकि उमर वहाँ काम नहीं कर रहे थे। मुइन का पहला खेल था, मलिक अनोखा का पहला खेल था, फिर लियाकत सोल्जर थे, बाकी थिएटर के एक्टर्स थे। फिर मुइन ने एक यानी लगातार खेल करने शुरू कर दिए, और उन 6-7 यानी स्टेज के ड्रामों में हर ड्रामे में उमर होते थे। पहले 4-5 साल जो उमर ने थिएटर किए मुइन के साथ और बाकी दोस्तों के यानी आर्टिस्टों के साथ, तो उन 5 सालों में अल्लाह ने उसका नाम इस कदर पॉपुलर कर दिया, इस कदर लोगों ने पसंद किया उसे, कि आम तौर पे आर्टिस्ट जो है ये 50 बरस में भी इतना पॉपुलर या इतना मजबूत आर्टिस्ट नहीं होता जितना कि उम्र 5 सालों में हो गया। फिर अल्लाह का फजल है, जहाँ उसका नाम होता था लोग एडवांस बुकिंग कराते थे और वो हॉल जो है वो फ़ौरन भर जाया करता था। बड़े पैसे कमाए लोगों ने उमर को कास्ट करके। उमर खुद लिखते थे, खुद ही डायरेक्ट करते थे, और फिर काम जैसा करता था वैसा आज तक किसी ने काम तो नहीं किया। कराची की मकबूलियत के बाद उमर ने एक दिन सोचा कि मैं लाहौर जाके थिएटर बनाऊं। यहाँ आके उसने लाहौर थिएटर शुरू किया। जितनी यानी सहूलतें उसको मिली, मेरा नहीं ख्याल किसी और आर्टिस्ट को मिलती। उसने बहुत अच्छा थिएटर यहाँ पे किया, बड़े आर्टिस्ट इंट्रोड्यूस किए उसने अपने थिएटर में, और हमारे तो बिल्कुल बच्चों जैसा था। मेरा तो खैर बेटा था, मेरे साथ तो उसकी जज्बाती वाबस्तगी थी और बहुत प्यार था मेरे साथ, और मुझे भी उससे इस कदर प्यार था। कमाल का आर्टिस्ट था, बड़ा उम्दा इंसान था और प्रोफेशनल आदमी था बिल्कुल। यानी किस कदर वो मेहनत करता था मैं आपको बता नहीं सकता। बड़ा कमाल का आर्टिस्ट था, और ये सारा कुछ मिन जानिब अल्लाह होता है, अल्लाह के हाथ में मुकद्दर होता है, अल्लाह ने लिखा ही हुआ इस तरह था। कॉमेडी वर्ल्ड के सर डॉन ब्रैडमैन, कॉमेडी लेजेंड और असली बैनुल-अक़वामी शोहरत याफ्ता पाकिस्तानी आर्टिस्ट उमर शरीफ। अस्सलाम वालेकुम उमर शरीफ साहब। वालेकुम अस्सलाम डॉक्टर साहब, मेरा सलाम कबूल कीजिए। अल्लाह ताला आपको सेहत तंदुरुस्ती दे। बहुत आपने ऑनर किया कि आपने मुझे अपने प्रोग्राम में ऑनलाइन लिया। मैं बहुत मशकूर हूँ आपका। इस काबिल नहीं हूँ कि आप जैसी बड़ी शख्सियत के सामने मैं बात भी कर सकूं, क्योंकि आप इतने सीनियर हैं और इतने कुछ हमने आपसे सीखा है। तो बहुत बहुत मैं मशकूर हूँ आपका इस पजीराई पर। उमर भाई, अब डार्लिंग आपसे चंद फास्ट फॉरवर्ड सवाल करेगा। चल भाई डार्लिंग, तैयार हो जा। मेरे उमर शरीफ को सेहत के साथ साथ उम्रे खिज़र अता फरमा मेरे मौला, ताकि वो इंसानों में इसी तरह खुशियां बखेर सके। मैं भी सुना, अल्लाह मेरेया, अल्लाह मेरेया, अल्लाह मेरेया, अल्लाह मेरेया डार साहब नू होर लंबी उम्र अता फरमा। ਐਨੀ ਲੰਬੀ ਉਮਰ ਕਰ ਦੇ, ਐਨੀ ਲੰਬੀ ਉਮਰ ਕਰ ਦੇ ਕਿ ਲੋਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਾਰ ਸਾਹ ਕੱਢ ਤੇ ਮੋਟਰਵੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਝਣ। अल्लाह मेरे। उमर शरीफ साहब, मैं ज़ाती तौर पे आपका बड़ा शुक्रगुजार हूँ, आपका बहुत शुक्रिया। खादिम आपके, मैं आपका खादिम हूँ। मैं हमेशा मैंने कहा है डार भाई, मैंने कभी आपके सामने ना आँख उठानी है ना ज़बान खोलनी है, तो आज आपने बात करने का मौका दे दिया। अदरवाइज़ मैं हमेशा
ऑलवेज आपकी दिल से बाय हार्ट में आई एम योर फैन रियली। लाहौर के साथ साथ उसने रिकॉर्डिंग शुरू कर दी, और जो कराची से भी यानी कॉन्टिन्यूशन में थी, ये जो वीडियो टाइप चीज़ होती है। तो ये जब हिंदुस्तान में कोई नई फिल्म लगती थी तो उमर का ड्रामा अगर चला जाता था तो लोग ज़्यादा उमर का खेल देखते थे। दो एक दफ़े उमर भी गए उनके बड़े फंक्शन में, जी अवार्ड में गए और फिल्म फेयर अवार्ड टाइप जो भी वहाँ पे अवार्ड्स होते हैं, बहुत गैदरिंग होती है, सारे प्रोफेशनल्स बैठे हुए हैं, मगर उमर को बहुत पसंद करते थे। Brilliant writer, a brilliant performer, all the way from Pakistan. Please welcome the amazing Umar Sharif. We are proud to have amongst us a legend whose charm knows no boundaries. The legend of Pakistan, he is here with us. Ladies and gentlemen, please welcome a distinguished personality, Umar Sharif. बहुत पॉपुलर थे वो हिंदुस्तान में भी, और ये पहला आर्टिस्ट था जो पाकिस्तान में रहते हुए हिंदुस्तान में बहुत जाना जाता था। जाने कैसे कैसे कमाल करता है, जो भी करता है बेमिसाल करता है। खुदा उम्र दराज करे उमर भाई की, जिसके फन को सारा जहां इस्तकबाल करता है। उसने पाकिस्तान नहीं छोड़ना चाहा और ना उसने छोड़ा। पाकिस्तानी, पक्का पाकिस्तानी था, और यहाँ से बैठ के वो इंडियन इंडस्ट्री को कॉन्कर करता था ऑलवेज। लाहौर में जब वो थे उमर, तो फिर फिल्मों में भी उसकी यानी शूटिंग्स जो थी उनका भी टाइम बहुत कम मिलता था उसको, मगर वो 22-23 फिल्मों में काम करता रहा और बहुत काम किया, और फिल्म में भी बड़ा मकबूल था। खुद भी 2-1 फिल्में बनाई उसने और बहुत कामयाब हुआ फिल्म में भी। फिर इस्लामाबाद में चला गया, फिर बाहर जब जाता था कभी यूएई चला गया, कभी पर्शियन गल्फ चला गया, कभी यूरोप चला गया, कभी इंग्लैंड चला गया, कहीं अमेरिका गया, कभी कनाडा गया, पूरी दुनिया में जाता था। जहाँ जहाँ उर्दू बोलने वाले, पंजाबी बोलने वाले थे, वो उसको इस तरह मानते थे कि मैं आपको बता नहीं सकता। इस कदर पॉपुलर था और इस कदर फैन फॉलोइंग थी उसकी कि आज तक ऐसे किसी आर्टिस्ट की नहीं। उमर ने यानी बहुत थोड़े अरसे में बहुत बड़ा नाम बनाया, ये अल्लाह की ख़ास करम नवाजी है। और फिर बहुत प्यारा आदमी यूं था कि जो अपने यानी जूनियर्स थे उनके साथ बहुत प्यार करता था और उनको भी साथ लेके चलता था, उनके साथ खड़ा हो जाता था। और कमज़ोर आदमी का तो वैसे ही वो यानी वोट होता था। जब अल्ताफ़ भाई ने उन्हें एडवाइज़र लिया तो गाड़ी भी मिली सरकारी तौर पे, तो मुझे कहने लगा, अब्बा सबसे पहले आपका कदम इसमें पड़ेगा तो इसमें बरकत होगी, पहले आप बैठें फिर मैं बैठूंगा। और जब जब मैं कभी कराची जाता था तो मुझे उस गाड़ी में लेके घूमता था कि आपका क्योंकि पहला कदम पड़ा था इस गाड़ी में, इसलिए मेरे लिए बड़ी बाबरकत है। और हर ईद पे उसने खेल अपना करना होता था एज प्रोड्यूसर, और जब प्रोड्यूस करता था अपना खेल तो सबसे पहले मुझे कहता था, अब्बा ये ईद फिर आपने अपने बेटे के साथ आ करनी है। पता नहीं कितनी ईदें की हैं मैंने उसके साथ। बड़े पैसे कमाता था और उसी तरह बांटता था। ये उसकी आदत थी कि वो बड़ी मदद करता था। बहुत ऐसे घर थे जहाँ उन आर्टिस्टों को वो देखता भी था और उनका ध्यान भी रखता था। उमर ने आज तक किसी का दिल नहीं दुखाया। ज़्यादा यानी उसकी कोशिश होती थी कि कमज़ोर आदमी के साथ खड़ा हो जाऊं ताकि वो और मजबूत हो जाए, क्योंकि खुद अल्लाह ने उसको बड़ा मजबूत किया हुआ था बहुत। और जो लोग यानी 50-55 बरस तक ऐसा यानी एंजॉय नहीं कर सके शोबिज़ को, जितना उमर ने बहुत कम अरसे में खुद को उसमें रहते हुए एंजॉय किया। अल्लाह ताला उसके दर्जात बुलंद करे, अल्लाह ताला उसके बच्चों को सब्र दे, अल्लाह ताला उसकी बिलोंगिंग जो है वो उसी तरह उसके लिए सोचती रहे, उसके लिए दुआ करती रहे। मेरी आपसे दरख्वास्त है कि जो आप उसके चाहने वाले हो, जो उसके फ़ैन हो, उसकी बख्शिश के लिए, उसकी मग़फ़िरत के लिए ज़रूर दुआ किया करो। अल्लाह आपको जज़ा देगा। लेकिन मैं जहाँ भी हूँ मेरा दिल जो है वो पूरे पाकिस्तान के साथ धड़कता है, आपके साथ भी मेरा दिल धड़कता है, तो अपनी दुआओं में याद रखिएगा मुझे प्लीज़। उमर भाई,
جس طرح آپ نے ساری زندگی لوگوں میں خوشیاں بانٹی ہے، مجھے یقین ہے کہ جنت میں میرے رب نے بھی آپ کو بہت خوشیوں میں رکھا ہوگا۔ آج کے دن ہم آپ کو یاد کر رہے ہیں اور یہ بتا رہے ہیں کہ ہم سب آپ سے بہت پیار کرتے ہیں عمر بھائی۔ دل سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو جنت کے اعلیٰ ترین مقام میں جگہ عطا فرمائے۔ لو یو عمر بھائی، مس یو عمر بھائی۔